Am I audible? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Okay. So in the last session, we had a foundation class Yes, ma'am. that. So in the last session, we had a foundation class that was just the basics, the building blocks of grammar that we covered was parts of speech, sentences, types of sentences, tenses, and common mistakes in singular plural forms, which we did. Today's session will be basically on business vocabulary. What is business vocabulary? What are the common words we use? And building up some professional skills, what skills or what kind of phrases we should follow in business environment in a corporate world, which will help us to develop, which will help us in increasing our professional skill or building our personality development. So what is business English vocabulary? क्या होता है? So business English vocabulary refers to the words or phrases which are typically used in professional और business environment में जो common words use करते हैं in terms related to several different fields. कोई भी field से हम relate करते हो, but there are some terms which are commonly used in every industry like finance, software development, marketing, etc. अब why these terms are necessary? क्यों ये terms हमको आना चाहिए? Because जब ये जो terms है वो we will use in business emails, meeting, proposals बनाने हैं, business English negotiation, newsletter, report calling, conferences and all. So when we attend all these things, so there are some terms or words which we should know which are common, which will help us in business. While learning the business English vocabulary is important, क्यों important है? Because this will help us to negotiate in presentations and feedback, constructive feedback इसको देना है उसके लिए, to share our ideas correctly. So by knowing this, there will be good language that will help us to participate in networking events, build professional relationships, key to your career progression. Minimize the risk of conflicting situations due to misunderstandings. हमारे vocabulary सही रहेगी, grammatical sentences सही रहेंगे, तो what we want to perceive, what we want to tell, that will be interpreted very correctly in order to make any decision or to stay on the top of industry and keep up with issues. So what are the things which we will do in order to improve our business English? हमको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि हम improve कर पाए business English vocabulary को हम कैसे करें? तो what is first is read. As much as reading books, magazine, newspaper या business news articles जो आते हैं, business news आते हैं, when we try to read them, so we will come uh, uh, against many vocabulary words or the jargons भी बोलते हैं. तो जो भी words हैं, new words हैं, हम उनके सामने आएंगे and we will try to analyze ये इसको क्या बोलते हैं. तो भी हम सर्च करेंगे. एक बार हमने वो वर्ड को सर्च किया तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि what it is meant for. Make use of online resources, free online resources, online dictionaries available होते हैं, तो we can take help of them in order to know the meaning of the words or just Google them. There are flashcards available, online flashcards भी available होता है, उससे हम words को समझ सकते हैं. Get creative word games वगैरह खेलते हैं, crosswords वगैरह खेलते हैं, तो that will challenge your brain and we will try to build your business vocabulary. Listening carefully. This is most important. Like listening is most important. जब हम सुनेंगे, हम नए वर्ड के सामने आएंगे, then we will try to analyze कि ये वर्ड को क्या बोलते हैं. So listening is important. Then speak. ये listen तो कर लिया, समझ लिया ये वर्ड का मतलब क्या है, बट स्पीकर वो वर्ड को हमको कहाँ पर यूज करना है. तो प्रॉपर यूसेज कब होगा? जब हम बात करना शुरू करेंगे, स्पीक करना शुरू करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कौन से वर्ड को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है. कॉमन बिजनेस वोकैबुलरीज आर जो हम मोस्टली डे टू डे लाइफ में देखते हैं.
These are some common words like advantage, advertisement, agenda. Agenda मतलब आज के दिन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. Authorization मतलब स्टैम्प है, तो मतलब हमने हमारे यहाँ से बोले कि ये हमारा है करके. ऑथराइजेशन, बिल, ग्रांट, बजट, कमीशन, कंफर्मेशन, कॉस्ट, डेप्थ. डेप्थ कलेक्टर हमारा एक क्लाइंट भी है. सो व्हाट इज डेप्थ कलेक्शन की? पैसा किसी से हमको कलेक्ट करना है. डेफिशिएंट, डेफिशिएंट एक वर्ड है, ये अपने थोड़ा नया लगेगा. दैट इज एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और लायबिलिटीज ओवर इनकम और एसेट्स. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे एक्सेस हो गया है पैसा हमारे, तो उसको करेंगे डेफिशिएंट बोलेंगे. एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर में कभी कभी हो जाते हैं. एम्प्लॉयज व्हाट वी आर, एंड एम्प्लॉयर इज हम किसके अंदर काम करें, दैट इज एसएमएस. एस्टिमेट्स हम जोहो वगैरह में नॉर्मली हम इस वर्ड के सामने आते हैं, जैसे कोड्स वगैरह बनाना, एस्टिमेट्स देना. Experiences, facilities, goals, feedback, improvements, inventory. So inventory, invoices, market inventory, मतलब in order to manage your raw materials, everything. So उसमें हम inventory use करते हैं. Payment, penalty, product, promotion, purchase, report, risk. These are common words which you will use in your day-to-day life. Now there's some more words, इसमें से कुछ words है which I would like to highlight, जो शायद हमको ना पता हो. So some of these words are like module. So module is when कि a person जिसके पास रैंक या पावर है, एनी इम्पोर्टेंट पर्सन इन द बिजनेस जिसके पास पावर, जिसका इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ हिज पावर और मनी. तो जैसे किसी कोई बॉस है तो हम क्या हो जाएगा, इज अ मॉडरेट पर्सन इससे. Then we commonly come across trademark. So trademark क्या होगा? This is sign, phrase or symbol that denotes a product. तो किसी प्रोडक्ट को हमने हमारा सिग्नेचर लोगो दे दिया, मतलब हमने ट्रेडमार्क क्रिएट कर लिया है कि ये प्रोडक्ट हमारा है. जैसे हम कोई भी सॉल्यूशंस और सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो वी पुट एसएनएस का लोगो इन दैट, सो दैट विल बी अ ट्रेडमार्क. तो इसमें कैसे होता है, अगर आर लिखा होगा तो दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. अगर टीए मेंशन रहता है तो दैट वुड बी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसको रजिस्टर नहीं किया गया है. एंड एसएम है कि अनरजिस्टर्ड सर्विस ट्रेडमार्क, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करे पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है. Other words are remuneration. So this is what की money paid for work or a service. किसी चीज, किसी सर्विस के लिए हमने पैसे पे किए हैं, तो what it will be called as remuneration. Okay. Now other word which is like uncommon to us, lucrative. So that is producing a great deal of profit. बहुत सारा profit हमने produce किया है, तो then we can use as a word as a lucrative. Then petty cash, this is petty cash, लिखा petty नहीं है, it's petty cash. तो money that a business or a company keeps in hand in order to make small payments, purchases or reimbursement. These were some words which are little bit uncommon. Lately I will share this PPT which will help you to go through some other basic words, and we can any new words if you come across, you can just Google and look. Now, some of the terms which we commonly use in our software development company. So, software developers कौन से words use करते हैं, कभी कभी उनको पता नहीं रहता. तो the basic are adherence. Adherence यानी compliance with process requirement या financial requirements है या agreements with user requirements. तो उसको हम क्या कहेंगे, adherence term से use करते हैं. Agile. Agile क्या है? A way to manage a project by breaking it up into several phases with the intent of iterative quick delivery. एक बड़ा प्रोजेक्ट है, we divided it to iterations. कि फर्स्ट फेज में हम ये देंगे, सेकेंड फेज में ये देंगे, थर्ड फेज में ये देंगे. तो ये पूरे प्रोसेस को, टर्म को हम क्या वर्ड देंगे, agile. Bugs, bug fixes. This is the word which we commonly come across. कोई भी issue problem है तो in software application we use the term as bug.
Now this is cloud enabled. Cloud enabled क्या है? It usually refers to the applications which we build traditionally, जिसको हमने होस्ट किया है हमारे डेडिकेटेड सर्वर्स पे एंड देन हम लोग उसको माइग्रेट करते हैं क्लाउड पे। तो जो भी एप्लीकेशंस ऐसा हमने डेवलप किया है तो हम क्या बोलेंगे उसको? दैट इज क्लाउड enabled application. Deployment भी common word है, that is the parts of software which are available to the client after code is shifted from development environment to the user environment. Development environment से हम जब user environment में जाते हैं तो उस phase को हम क्या बोलते हैं? Deployment of a project. रोड मैप इज प्लानिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो ओवरऑल प्लानिंग हम करते हैं रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट से लेके टेस्टिंग तक का एंड डिलीवरी तक का। तो ये पूरा जो प्रोसेस हम स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट आता है हम बनाते हैं तो दैट वुड बी अ रोड मैप ऑफ अ प्रोजेक्ट। Sandbox, this is also a common word which we daily come across. That is, the developers use this platform for trying out coding changes. Coding changes को यहाँ पे try करते हैं, experiment करते हैं, test करते हैं, and after validation we put it into our live project. So this is called a sandbox. Next is staging or staging environment. इसको भी हम commonly day to day use में इस term को use करते हैं. That is, staging environment is a clone of your deliverable or shippable semi private environment. That is क्या कि हम अभी staging environment बना रहे हैं एक environment में, या तो test server में जो हम applications बनाते हैं हमारे client को दिखाते हैं and after approval we take it to the live. That is, live में कैसा दिखेगा उसका एक प्रेजेंटेशन या तो उसको क्लोन बना के हम उसको बताते हैं। तो दैट इज स्टेजिंग एनवायरनमेंट। Okay. So these were some terms like business vocabulary, day-to-day business terms हम जो use करते हैं and overall improving those terms depend की reading and listening and speaking. These are the three things with which we do or go through the business news articles या normal articles या blog पढ़ेंगे तो we come across different jargons. जैसे अगर हम एसईओ पे कोर्स पे, तो एसईओ के अलग अलग हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो नए नए टर्म्स हमारे सामने आएंगे। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिप्लॉयमेंट में क्या नए नए टर्म्स आ रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग में लोग और क्या क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। उस सारी चीजों को जो भी हम जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के आर्टिकल्स, उस फील्ड के ब्लॉग्स, उस फील्ड या बिजनेस की न्यूज हमको पढ़ना है। आफ्टर वी रीड देम देन ओनली वी विल कम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स एंड विच विल बी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। जब हम सुनेंगे उसको समझेंगे देन नेक्स्ट स्टेप इज वी विल इम्प्लीमेंट। दैट इज, जब हम बात करेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बात करेंगे तो उस वर्ड को हम यूज करेंगे एंड जब हम क्लाइंट मीटिंग्स करते हैं तो ऑल दीज वर्ड्स, बिजनेस वर्ड्स विल हेल्प यू मच टू बिल्ड योर वेबसाइट एंड express your words. Some of the grammar things which we missed last time, I want to cover 2-3 parts. That is, in prepositions of time. This in, on, and at. ये क्या है? Prepositions है. So when we should use them? जैसे अगर हम कोई seasons, month, year या तो time of days है तो हम उस पे in यूज करते हैं। लेट्स मीट इन अप्रैल, मतलब मंथ, ईयर, वीक्स, डेकेड, सेंचुरीज को रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? इन प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। इन केस कोई लोकेशन के बारे में हम बता रहे हैं तो हम यहाँ पे जैसे आई लिव इन लंदन, कंट्री, सिटी, नेबरहुड वगैरह के बारे में बताए तो वी विल यूज द प्रीपोजिशन एज इन। अगर हम किसी डेज के बारे में बता रहे हैं, डेट्स के बारे में हमको कुछ लिखना है या हॉलीडेज के बारे में हम मेंशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ऑन। सो डेज और वीकेंड, लेट्स मीट ऑन सैटरडे, आई लिव ऑन मेन स्ट्रीट। किसी लोकेशन के बारे में डेज, वीकेंड या हॉलीडेज के बारे में मेंशन करते हैं तो वी विल राइट ऑन। किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में वी वांट राइट तो उस टाइम पे हम लेट्स मीट ऑन 12 o'clock और इन 12 o'clock नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एट 12 o'clock। दीज आर माइनर थिंग्स। एक सिंपल सेंटेंस है बट कभी कभी इन, ऑन, एट में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते तो सेंटेंस हो जाए। So, midnight, lunchtime, dinner time. So let's meet at 12 o'clock. I leave at 32 Main Street. कुछ कुछ वर्ड्स है जिसमें इन, ऑन, एट नहीं लगाते हैं। कैसे? नेक्स्ट वीक, विल मीट नेक्स्ट वीक, विल मीट दिस वीक, लास्ट वीकेंड आई हैड अ मूवी नाइट, एवरी वीक, टुडे, टुमारो, yesterday. These are some exceptions.
Now let's go through some confused words जिसका pronunciation सेम लगता है but meaning different है, जो डे टू डे लाइफ में इसके सामने आते हैं। तो आई हैव मेंशन सम ऑफ द अलाउड एंड अलाउड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा ही है। तो प्रोनाउंसिएशन एक होने की वजह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं राइटिंग। दैट इज द कॉमन वर्ड्स। अलाउड एंड अलाउड में जोर से बोलना, अलाउड मतलब हम परमिट कर रहे हैं। Who और किसके बारे में बोल रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट है who। ब्रेक एंड ब्रेक, ब्रेक है कुछ टूट के, स्प्लैश एंड स्टॉपिंग डिवाइस जिसको हम जैसे कार वगैरह में करते थे हम, ये भी आ रही थी। देन विच एंड विच, ये भी हो गया, प्रोनाउंसिएशन सेम है पर विच हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच मतलब तो पता ही होगा, चुड़ैल जैसे बोलते हैं। वीक एंड वीक, ये इसलिए कॉमन हो जाता है, वीक एंड वीक। वीक तेज होता है WEEK, एंड वीक मतलब हम कमजोर हैं, वीक एंड वीक। एट एंड एट, प्रोनाउंसिएशन सेम। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस यस, ओके। वेदर एंड वेदर, सीधा प्रोनाउंसिएशन इज वेदर मतलब क्लाइमेटिक के बारे में बता रहे हैं, वेदर मतलब इन केस। ऐसे बाय एंड बाय, बाय हम प्रीपोजिशन है, सेंटेंस को कंप्लीट करने में लिखते हैं, बाय इज लाइक परचेज। देन एंड दैट, देन मतलब ये नहीं तो ये कंपैरिजन होता है, एंड देन मतलब एट व्हाट टाइम। ऐसे टू एंड टू का लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था। क्वाइट एंड क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंट, चुप हो जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, QUIE लिखते हैं। एंड QUITE लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रियली और पॉजिटिवली। प्लेन और प्लेन, प्लेन या फ्लैट सरफेस प्लेन हो जाएगा, प्लेन मतलब सिंपल। फॉर एंड फॉर तो हमारा प्रीपोजिशन है ही है, फॉर इज द नंबर। तो दीज आर सम विच यू कैन गो थ्रू लेटर ऑन। नाउ दिस इज एवर क्वेश्चंस लाइक forever, whatever, whoever, whichever, whenever and wherever. So however you look at it, it's going to cost a lot। कैसे भी आप मतलब when to use these kinds of words। वॉट एवर यू डू ट्राई योर बेस्ट, जो भी आप करते हो ट्राई योर बेस्ट। सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वॉट एवर। जब ये वर्ड्स हैं, these are some examples कि हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। विच एवर डे यू कम, वी विल बी प्लीज टू सी यू, कभी आओ विल बी प्लीज टू सी, तो विच एवर कभी भी आओ। whoever, कोई भी को मेंशन करना है तो whoever, कभी भी को मेंशन करना है तो whenever, कहाँ भी को मेंशन करना है तो wherever we are going। दूसरी हैव एंड हैज, दीज आर टू वर्ड्स जिसमें राइटिंग में हम कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। सो हैज विल बी goes in the pronouns he, she, it with a singular form। एक जन के बारे में करेंगे तो हैज आएगा। एंड हैव मतलब आई, अगर मैं मेरे बारे में बोलूँ तो आई हैव दिस पेन, आई हैव सेंट यू अ मेल, तो हम हैव यूज करेंगे। आई हैज सेंट यू अ मेल नहीं आएगा, राइट। हैज हम कभी कभी लिख देते हैं, आई हैज सेंट मेल, हैज नहीं हैव। मेरे बारे में मैं बोल रही हूँ तो हैव आ जाएगा। अगर किसी और के बारे में, प्रोनाउन मतलब उसका नाम नहीं, किसी और के बारे में मुझे मेंशन करना है तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम हैज को यूज करेंगे। If you would have a thing well done, do it yourself। The busy bee has no time for sorrow। Has और have मतलब I, you, we, they have books, ऐसे। Now this was some grammar parts which we missed last time, and we covered the business vocabulary। Now let's go on and look at some professional skills which will help us in building our personality development। So soft skills are really very important for every employee। So what are the skills which we have to work on in a day-to-day life which will help us in our corporate world? Time management, management of our works, communication is really important। कहीं पे भी जाएंगे, प्रेजेंटेशन देना है, ईमेल बनाना है, बात करना है क्लाइंट से, सो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स अडेप्टेबल इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द लोकेशन बट अडेप्टेबल टू द प्रोजेक्ट्स। कभी ये प्रोजेक्ट में था फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट में तो वहां पे कुछ या तो हम दूसरे कंपनी में थे, उसका वर्किंग कल्चर अलग था। हम अभी ये जो कंपनी में आए हैं उसका वर्किंग कल्चर अलग है, तो
it's take time, but धीरे धीरे we adapt to the whatever environment we are. Problem solving, कभी हम कुछ अटके तो how we will crack the deal or the work or the solution, that is problem solving. Teamwork is very much important. Teamwork के बिना कुछ नहीं होता. Whatever projects you have, we have to be having a teamwork with us. Creativity, एक काम को दिया गया है अपने को, तो हाउ टू मेक इट मोर क्रिएटिव वे में कैसे कर सकते हैं, या तो फिर बेस्ट और ज्यादा कम टाइम देके अच्छी तरह से हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं कम टाइम में. तो नॉर्मल प्रोसेस तो चलता ही रहता है कि ऐसे ऐसे करना है, बस उस नॉर्मल प्रोसेस को कैसे एनहांस करना है और कैसे उसको दिखाना है, दैट इज द क्रिएटिविटी वी शुड डेवलप. लीडरशिप, जैसे लीडरशिप में ये भी बोल सकते हैं कि टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज. अभी हम प्रोजेक्ट में हैं, टीम वर्क में हैं, 4 लोग हैं, देन अगर कहीं कोई एब्सेंस है या किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम हमारी ओर से हेल्प करते हैं, उसको मैनेज करते हैं. कभी कोई नहीं है तो दैट इज टेकिंग लीडरशिप ऑन योर ओन. समटाइम्स यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ टीम, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको ही प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये जो लीडरशिप होती है हमारी, वो हमको हेल्प करेगी. इंटरपर्सनल स्किल इज द स्किल्स दैट वो कम्युनिकेशन में ही आ जाता है, जनरली विच वी यूज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद आवर कलीग्स. वर्क एथिक्स, मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ के एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करना, रेगुलरिटी है स्पीच में, किसी को रेस्पेक्ट देना, ऑल दोज थिंग्स कम्स इन वर्क एथिक्स. अटेंशन टू डिटेल, वॉट एवर things are given or any points are given, so we just pay attention. So we will go through some phrases which we use in day to day life और उसको हम कैसे enhance कर सकते हैं and how we can develop some certain skills. Now, firstly, we will go through on phone. Suppose we are speaking on phone or talking to a client or someone on the phone. So, what are the basic terms which we can use in order to initiate our call? So, we can mention a name. May I speak to you? पहले परमिशन ले लो, क्या मैं बात कर सकती हूँ? Are you available? Just a moment, please. अगर हम किसी चीज में अटक गए हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो फील फ्री एंड टेल के 1 मिनट रुकिए. सो व्हाट विल वी यूज द टर्म एज जस्ट अ मोमेंट, प्लीज होल्ड ऑन, रुक जाइए. कैन आई टेक अ मैसेज? कैन आई कांट हियर यू वेल. Where are you calling from? I just wanted to ask, could you tell me how to proceed? Hang on, I would like to speak to, I am calling on behalf of SNS system. So some, these are just small words or phrases which we can use in order to initiate our telephonic communication with the client or anyone you speak in on a part of your business, or if you're representing anyone, any business product or anything. Nextly, when we attend the business meeting, so some of the phrases which we can use. So business meeting चल रही है and we want to interrupt or say something किसी चीज में, तो what are the words we can use which will not मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसको हर्ट भी नहीं होगा और हम हमारे पॉइंट को वेरी इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हम दे पाएंगे एंड वी आर नॉट रॉन्ग. किसी चीज में ना बोलना ऐसा नहीं होता, दैट इज कोई गलत बात नहीं है, बट जस्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ इन अ पोलाइट वे कि ऐसे नहीं ऐसा चाहिए वैसे. सो इंटरप्टिंग में हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज देंगे. तो वो मे आई हैव अ वर्ड, मैं कुछ बोलूँ क्या, इफ आई मे थिंक, मैं ऐसा सोच रहे हैं, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग, एक्सक्यूज मी मुझे कुछ बोलना है करके. अगर हम एग्री कर रहे हैं तो क्या टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, लाइक एग्जैक्टली दैट, एग्जैक्टली द वे आई फील, आई हैव टू एग्री विथ हिम, आई एग्री विथ हिम, ये जो बोल रहा है वो सही है. अगर we are trying to give opinion, so I really feel that in my opinion, the way I see things, so these are some few words which can use in our communication. Presentation देना है या तो communicate करना है या तो किसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और हमको हमारी पॉइंट रखना है, तो that will help us. Disagreeing with other opinions, कोई कुछ बोल रहा है बट हम एग्री नहीं करते तो क्या है, put a point, I agree with you but use करना है. I am afraid I can't agree. Advising or suggesting, अगर मेरे को कोई चीज सजेस्ट करनी है तो what will I use? We should, why don't you, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, how और what would, अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा. So this will be like advising or suggesting. Commenting on opinions, अगर किसी ने कोई ओपिनियन दिया
हमको उसको कुछ बोलना है तो या हाँ गुड पॉइंट है, आई गॉट योर पॉइंट, मैं समझ गया, आई सी व्हाट यू मीन, हमें को पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्लैरिफाइंग, अगर कुछ चीज को हम क्लैरिफाई करें तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसको बोल के हैव आई मेड दैट क्लियर, मतलब मैंने आपको बता दिया। जैसे अपन पूछते हैं मीटिंग्स होने के बाद या कुछ प्रेजेंटेशन, कोई डाउट है पूछ लो, दैट इज हाउ आई मेड इट क्लियर। डिड यू सी व्हाट आई एम गेटिंग एट, जो मैं बता रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं। आस्किंग फॉर द रिपीटेशन, अगर हम चाहते हैं हम समझ नहीं पाए, हमने कोई पार्ट को मिस कर दिया तो हम रिपीटेशन के लिए भी बोल सकते हैं, तो आई डेंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट। Some other phrases which you can use is thank you for coming today. जब business start करते हैं meeting करते हैं, use that. Then since everyone here is here, let's get started. अगर किसी को वेलकम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू इंट्रोड्यूस, किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो वी कैन स्टार्ट लाइक आई वुड लाइक अ मोमेंट टू इंट्रोड्यूस समवन, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट क्लारा फ्रॉम द पब्लिक रिलेशन, मतलब उसका नाम बता दिया, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मेरे को इसके बारे में बता रहे हैं। तो प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग, मतलब आप सब भी इनको वेलकम करो। प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग जिम, अ कंसल्टेंट हु इज हेल्पिंग अस। सो दीज आर द लाइंस व्हिच कैन यूज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ आवर मीटिंग। जिसको इंट्रोडक्शन देना है करना है तो मीटिंग्स के टाइम में हम इसको यूज करेंगे। अच्छा है, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कभी किसी और को बोलना है कि आप अपने बारे में बताओ तो हम ये लाइंस को यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द एजेंडा, वी आर ये टॉकिंग अबाउट एजेंडा, आप आपको पता है उस हिसाब से व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आई हैव कॉल्ड दिस मीटिंग इन ऑर्डर टू हैव अ गोल फॉर द 2 days, व्हाट डज एवरीथिंग थिंक अबाउट, एवरीवन थिंक अबाउट। आई वुड लाइक टू गेट योर फीडबैक ऑन, हमने कुछ मीटिंग्स कर ली तो फीडबैक चाहिए लास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू गेट योर फीडबैक ऑन व्हाट आर योर व्यूज ऑन। Some other things which would like to cover is which were sentences के go through करेंगे, जैसे greetings और intro, जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो greeting और introductions देना है, तो हम क्या है, hello everyone, it's wonderful to see you all today. Before we start our meeting, I would like to welcome, thank you for taking the time to attend this meeting. Good to see you all. Let us write in the business and make the best use of the shorter time together. सेटिंग द एजेंडा, तो हम ऐसे बोलते हैं फर्स्ट आवर एजेंडा के बारे में हम बता सकते हैं कि हमने ये है, एंड नेक्स्ट इन आवर एजेंडा इज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अदरवाइज द नंबर ऑफ इश्यूज जो कॉमनली हम करते हैं, तो वी हैव इतना नंबर ऑफ इश्यूज टुडे एंड विल डिस्कस ऑन देम। अगर हम कोई किसी प्रेजेंटेशन में है, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, फॉर दोज हु डोंट नो मी, हम पहले हमारा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जब भी हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन वी हैव टू जस्ट समराइज अबाउट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्पीक। तो मेरा प्रेजेंटेशन किसके बारे में है, विच समरी दे देते हैं स्टार्टिंग में, आज हम क्या कवर करने वाले हैं। बाद में डज एनीवन हैज अ क्वेरी, बिफोर में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पहले पूछ लेते हैं अपन। देन दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस जस्ट मोर इन नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स और बताने हैं तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, समरी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड ऑल। लास्टली फैसिलिटिंग, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या क्या वर्ड्स या फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं। वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो लेट्स हैव अ फ्यू पीपल शेयर देयर थॉट्स ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो जब हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, समरी कर देते हैं, तो कुछ डिस्कशंस में अगर पूछना है तो वी कैन यूज दिस वर्ड्स, हु इज इन एग्रीमेंट विद द पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड टुडे, किस कोई डिसएग्री करता है क्या, वी कैन आस्क such can use such kind of sentences. We can begin by disagreeing that there is a problem with this, right? Can we finish off by assigning the different tasks to several team members? Now closing of meeting, हम meeting को close करना चाहते हैं, तो what are the words we can choose? Let's conclude by summarizing the main points we have discussed today. Can we set a date and time to follow up meeting? Let's have minutes of this meeting by close of the business today. सबने सुना ही होगा minutes of the meeting, regularly meeting complete होने के बाद हम लोग देखते हैं। Thank you everyone for taking the time to attend this meeting. Your presence and contribution was appreciated. So जिन्होंने भी meeting attend की, so we can appreciate them, summarize कर सकते हैं, MOM दे सकते हैं, adjourn कर सकते हैं meeting. So these were the points or the phrases, some phrases which can be used in different scenarios of meeting. Now let's see some sentences which we can stop using. इसके बदले हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम bluntly directly बोल देते हैं, उसके बदले हम कैसे
दूसरी तरीके से बोले ताकि उसको बुरा भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है तो आई कैन सजेस्ट दिस, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, तो आई डोंट सीन दैट दिस इज द प्रॉब्लम विथ, लेट मी सी इफ दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। इज दिस ये आपका करंट एड्रेस है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज वेरीफाई योर करंट एड्रेस, आर यू श्योर। ऐसे बोलने के बदले व्हाट वी कैन से इज व्हाट आई वुड लाइक टू रेकमेंड, मैं रेकमेंड करूँगा। इट्स नॉट माई जॉब बोलने से अच्छा है कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं क्या कर सकते हैं, प्लीज टेल मी हाउ आई कैन बी, हाउ आई कैन असिस्ट यू, what you should do, what I can do for you as well. So some of the words which can be, which can we can replace in our day-to-day life. You don't seem to understand, हमको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे बोलने से अच्छा we can say please follow me to clarify any confusion। हम बोल सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज मेरे को पूछ लो, instead of saying that you don't understand anything। Okay? So five things that indicate you are a good communicator। जो कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें, तो गुड लिसनर्स, जैसे हमने पहले भी कहा कि गुड लिसनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे हमको बहुत सारे लोग कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पे पॉजेस ले रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जितना हम सुनेंगे उतना हम ग्रैप्स करेंगे और अपने आप को यूटिलाइजेशन करेंगे। फेस रीडिंग एक्सप्रेशन से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Delivering any message to the listener, to know many tips or tricks to make every complicated subjects easier। Complications है subject को उसको easily कैसे deliver करे, communicate करे, वो सारे skills अब इसमें cover होते हैं। Speak only when required, you should speak only when required। So good communication के लिए जरूरी है कि तभी वो जो पूछा जाए। सम थिंग्स चेस क्लाइंट फॉर फीडबैक, अगर हमको क्लाइंट से कोई फीडबैक ले रही है तो व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द फ्रेजेस वी कैन यूज नॉर्मली पूछने से अच्छा, व्हाट वी कैन यूज, प्लीज टेल मी इफ यू नीड टू प्लेस एन ऑर्डर, प्लीज कंफर्म इफ यू एग्री विद द प्राइसेस स्टेटेड अबव। हमने कुछ भेजा है और हमको उससे पूछना है, फॉलो अप लेना है, तो दीज आर फ्यू सेंटेंसेस व्हिच वी कैन यूज। Please let me know if you wish to continue and I will prepare a paperwork. Please confirm if you wish to proceed with this code or with this solution or with this idea. Could you please let me know if this solution would be suitable for you for your business? तो ये अच्छा idea है. We can write like this and follow up with the line. Now these are the words like communication like a boss at work. इसका मतलब क्या है? Diplomatic answer देना, bluntly नहीं, and diplomatic way में हम किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। when someone suggests a new action or language सजेस्ट कर रहा है तो that's a different approach, can you tell me why it's better, क्यों बेटर है, क्या आप बता सकते हो। तो डिप्लोमेटिक वे में अपने पॉइंट को हमको रखना है। When you have exhausted all possibilities, सारी चीजें हमने ट्राई कर ली तो हम क्या बोलते हैं, there is nothing I can do, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो I am bit stuck, can you help me to find out any other options। This will be the best way to speak। When the work is urgent, this will only take a minute, let me get back to you on a time। While giving feedback you should have, तुमको ऐसा करना चाहिए था, तो I didn't work here, what I recommend for the next time, ये मेरे recommendation है, ये मुझे नहीं समझा, ये मेरे recommendation है, तो next time ऐसे ऐसे कर लेना। While correcting someone, तो instead of saying like you are wrong, we can say like I disagree, मुझे agree नहीं है, and yours why, what do you think, हम क्या सोचते हैं, वो हम हमारा ओपिनियन वैसे रख सकते हैं। वेन यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ हमारे पास बचता नहीं है, तो हम बोल देते हैं कि आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, तो उससे अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं व्हाट कुड आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम। मतलब ये कम्युनिकेशन के लिए, लिखने के लिए नहीं है, कम्युनिकेट करने के लिए कि हमारा, हम जो मैसेज देना चाहते हैं वी कैन से इन सिंपल लाइन्स, बट उसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा इम्पैक्ट कुछ और पड़ता है। कोई कुछ हम 50% गलती में है तो वहां से इन वर्ड्स के थ्रू हम 20% गलती में पहुंचे। नाउ सम अदर वर्ड्स लाइक, हम बहुत सारे वर्ड्स में क्या करते हैं, सॉरी यूज कर देते हैं स्टार्टिंग में, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दो सॉरी 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 अगेन एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ वी शुड अप्रिशिएट एंड टेल द वर्ड इन अ डिफरेंट वे। सो सॉरी फॉर रीशेड्यूलिंग, मैंने रीशेड्यूलिंग करवाया, उसके लिए मैं सॉरी शेड्यूल, थैंक्स फॉर बीइंग फ्लेक्सिबल, तो उसको हम अप्रिशिएट करें, थैंक यू दे रहे हैं, उसको प्रेजेंट करें, तो दैट विल बी सॉरी बोलने से, सॉरी बोल के अपने आप को ग्रिटी करने से, थैंक्स बोल के उसको अच्छा फील कराना है।
Sorry to bother you. Thanks for craving after time. Thank you, तुमने मुझे time दिया. Sorry for running late. Thank you so much for waiting. This is the word which I could have used today. Sorry, I had to take that call. Thanks for your patience. आपने wait किया. So instead of using the sorry again, we can use these kind of words. Sorry for the mistake. So thanks for catching that. Thank you. आपने इसको catch कर लिया and I will try to improve. तो mistake के पहले thanks for catching आपने पकड़ लिया. Sorry, I don't get it. Could you repeat that? I just want to be clear. Now, we just had some phrases जो हमको meetings में, daily communication में, work environment में, business environment में use कर सकते हैं in order to promote ourselves. So, इसके बाद we'll see some things which we can develop. Personality development, professional development के लिए क्या चीजें जरूरी है जिस पे हम focus कर सकते हैं, that will help us to improve or improve in our work. So 4 practices that will help us to adapt to any change. कोई भी change आता है, कोई भी work pressure आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? Mindfulness, pause, take a deep breath and observe your feelings. Curiosity रहनी चाहिए हमेशा कि अब क्या changes इसमें और क्या है, क्या questions हम पूछ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, solution को कैसे best way में दे सकते हैं. तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो हमको क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए उस काम की कि हम उसको कैसे अलग अलग वे से कर सकते हैं. जब हम उसका वेज ढूंढेंगे तो हम उसका बेस्ट वे तक पहुंच सकते हैं. ग्रोथ माइंडसेट, थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज करेजियस एंड गिविंग एन ऑप्शन एंड एनर्जी टू एक्ट. हमेशा माइंडसेट रहना चाहिए. वी आर नॉट वीक, वी आर नॉट वीक, वी आर ऑलवेज द बेस्ट एट आवर. So we will try to improve and grow ourselves. Remind yourself all the ways that you are really strong. हमेशा हमको अपने आप को रिमाइंड करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने कुछ गलती किया है, दैट्स ओके, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. वी विल टेक आवरसेल्फ इनटू नेक्स्ट स्टेप. ऐसे नहीं कि अचानक से ग्रोथ हो जाती है. दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. धीरे 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 एक्सपीरियंसेस के साथ, ड्रॉबैक्स के साथ वी विल मूव अहेड एंड वी विल बिकम स्ट्रांग. Some strategies to survive. This is like work pressure बहुत है, अब मैं क्या करूँ? So we have to be positive. Laughter is the best medicine. Laugh always. Then leave work issues at work. घर का work के issues है वो हम हमारे ऑफिस में ही छोड़ते हैं और घर में हम हमारा प्रोफेशनल लाइफ को भूल के हमारे पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए. टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना चाहिए कि अभी कुछ काम दे दिया 10 घंटा करना है तो बस 10 घंटा बैठ गए और कर रहे करे. दैट विल नॉट गिव अ गुड आउटपुट. जबकि आप 10 घंटे के बदले 8 घंटा भी कर रहे हो पर उसको बीच में ब्रेक्स ले रहे हो, अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहे हो, तो दैट विल गिव यू मोर मोर आउटपुट मिलेगा आपको. सो द टाइम डजंट मैटर, द क्वालिटी विल मैटर. Self improvement, हमेशा try to improve. We are not best, we are trying to improve. हमेशा we should not think कि I am the best. It is I will be the best. Surround yourself with the positive messages. Don't take things personally. Professionalism को प्रोफेशनल में छोड़ दिया जाए. Hang out with similar minded positive co-workers. This is like अभी हम किसी प्रोजेक्ट में है, बिजनेस में है, तो बिजनेस के co-workers के साथ हम अगर टच में रहते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल. क्यों? क्योंकि हमको एक ही बिजनेस के अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलते हैं. अलग अलग एनवायरमेंट में या अलग अलग जगह पे क्या क्या चल रहा है. सेम प्रोजेक्ट है पर वो अलग तरीके से कर रहा है और मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ. तो सेम माइंडेड, सिमिलर माइंडेड पीपल के साथ हमारी फ्रेंडशिप या कोवर्कर्स रहेंगे तो पॉजिटिव मैसेजेस रहेंगे तो वी विल ट्राई टू गेट मोर नॉलेज. Count your blessings and maintain sense of self. Now, this is just like average employee and great employee. So we can find out where we are and where we can improve. Just sharing few websites that you can use in order to learn the things online whenever you get time. And these are some AI tools I would like to share. You can try it yourself. If someone works out, please feel free to share with everyone so others can also take a help of it. And thank you so much for the today's session. So this was all about like
business vocabulary we have to improve only through reading and listening. Some of the grammar parts we covered about time, and some professional and personality development things and phrases which we have to use in a business corporate world day-to-day environment in order to interact with our client. So meetings में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, what are the phrases we can use in order to express our views. So that's all for today. If anybody have any questions or anybody want to express their views or share some experiences to the other employees so that it would be helpful for them in their personality development, then feel free to share.